الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر رواه البخاري. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، پردے کی آڑ میں بیٹھے ہوئے اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے فجر کے خزانے اور صبح کی برکتیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بھی باتیں رکھی جائیں گی قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم تقبل یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، ہمیں اور آپ کو غور سے سننے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس موضوع کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ کر کے جمع کر دیا گیا ہے، اور وہ موضوع ہے فجر کے وقت ایک مسلمان اپنے نرم و گداز، نرم ملائم بستر کو چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہوا چلا آئے، کیونکہ جو لوگ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ
اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے جو مسلمان فجر کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے رزق میں اللہ تبارک تعالیٰ فراوانی کرتا ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے میں کہوں تو جو لوگ فجر کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لے رکھی ہے، یہ گارنٹی دیا ہے۔ حضرات گرامی، بہت ہی بدنصیب ہے وہ انسان اور قسمت کا مارا ہے وہ آدمی جس انسان کے دن کی شروعات اللہ کے نافرمانی سے ہو۔ کتنا بدترین ہے وہ انسان اور کتنا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس کے دن کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہو۔ مسجد کے مناروں سے آپ یہ اذان کی آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ اے بستی کے لوگوں آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ تم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہو؟ کامیابی کا مرکز تو یہ مسجد ہے، کامیابی کا محور تو یہ مسجد ہے۔ اور اس کے بعد میں مسجد کے مناروں سے آپ یہ بھی سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز بہتر ہے تمہارے نیند سے۔ یہ صدائیں آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، جو لوگ ان آواز کو سن کر کے دوڑتے ہوئے اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے گھر میں آتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ذکر و اذکار کرنے کے بعد وہ روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ لوگوں نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فرمایا فجر کی تلاوت۔ یہاں فجر کی تلاوت وقرآن الفجر سے مراد وصلاۃ الفجر ہے، یعنی فجر کی نماز کو تم قائم کرو، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کی یہ نماز مشہود ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے اندر فرشتے آتے ہیں، اللہ کے وہ رحمت کے فرشتے، وہ برکت کے فرشتے رحمت لے کر کے نازل ہوتے ہیں، برکت لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اب جو حضرات مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہے وہ رحمت اور وہ برکت کیا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دو۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا واقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل، کہ لوگوں نماز کو قائم کرو رات کے دن کے دونوں حصوں میں، دن کے دونوں حصوں سے مراد مغرب کی نماز اور اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا کیا ہے ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے لوگوں تم نماز کی پابندی کرو۔ اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں اگر خوشیاں لانا چاہتے ہو، اپنی ذلت اور رسوائی کو اگر تم دور کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا ہے نماز کی پابندی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بہت کم سوتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ایک مومنوں کی صفت بیان کی ہے
कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल असहार हिम यस्तगफिरून, कि मोमिन वो हैं जो रात में कम सोते हैं और रात के आखिरी पहर में, रात के आखिरी हिस्से में उठ करके अल्लाह तबारक ताला से वो माफी तलब करते हैं, अपने गुनाहों की वो बख्शिश मांगते हैं। और अल्लाह तबारक ताला ने एक दूसरी जगह फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, कि मोमिन वो हैं जो रात को अपने पहलुओं को बिस्तर से जुदा कर देते हैं, वो अपने पहलुओं को बिस्तर से चिमटाते नहीं बल्कि वो उठ जाते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, और वो अपने रब को खौफ से, डर की वजह से और लालच की वजह से क्या है, अपने परवरदिगार को पुकारते हैं। खौफ की चीज का उन्हें खौफ इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तबारक ताला हमारी गिरफ्त कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अजाब के अंदर कहीं मुब्तला ना कर दे, और लालच इस बात की कि वो चाहते हैं कि ऐ अल्लाह तू हमें अपनी जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। यानी वो जन्नत के लालची होते हैं जो रात को क्या है कम सोते हैं और उठ करके अल्लाह तबारक ताला से क्या है अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करवाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बहुत कम सोते थे, रात के आखिरी हिस्से में उठ जाते थे और तहज्जुद की नमाज अदा करते थे, और तुलूए फजर के बाद उठ करके नमाज फजर के लिए जब अजान दी जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फजर की जो दो सुन्नतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बड़े एहतमाम के साथ अदा करते थे। हदीस के हवाले से मैं आपके सामने बयान करूं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला शैइन मिनन नवाफिल अशद्द तआवुदन मिनहु रकअतल फज्र, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना सख्ती से फजर की जो दो सुन्नतें हैं उसको इतना पाबंदी से अदा करते थे, इतना किसी और क्या है सुन्नतों की पाबंदी नहीं करते थे। ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये जो फजर की जो सुन्नतें हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में क्या है कभी इस नमाज को, चाहे आप सफर में रहे हो या इसी तरीके से चाहे आप हजर में रहे हो, चाहे आप घर में रहे हो या घर से बाहर रहे हो, कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को तर्क नहीं किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदअ अरबअन क़ब्ल ज़ुहर व रकअतैन क़ब्ल अल-फ़ज्र, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले 4 रकात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे, ज़ोहर से पहले 4 रकातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्क नहीं करते थे, उसकी आप पाबंदी करते थे। और इसी तरीके से बयान करती हैं व रकअतैन क़ब्ल अल-फ़ज्र, और फजर से पहले जो 2 रकात जो सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी पाबंदी करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कभी नहीं छोड़ते थे। हजरत गिरामी इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो फजर की जो 2 सुन्नतें हैं, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों से ज्यादा ये दो रकात जो सुन्नतें हैं ये बेहतर हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि ये जो फजर की जो 2 रकातें हैं ये दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी सारी चीजें हैं, सारी चीजों को दुनिया और दुनिया की सारी चीजों को एक तरफ कर दिया जाए और जो ये 2 रकात जो सुन्नत है इसको एक तरफ कर दिया जाए तो दुनिया की सारी चीजों की कोई अहमियत और कोई वैल्यू नहीं है इन दोनों रकातों के सामने। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सुन्नतों की ये फजीलत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर जब तक आप इस दुनिया में जिंदा रहे, जब तक ये कहते रहे कि ये जो 2 सुन्नतें हैं मेरे नजदीक दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी सारी चीजें हैं, सारी चीजों के मुकाबले में ये दो जो सुन्नतें हैं मुझे ज्यादा महबूब हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, सही मुस्लिम की रवायत है, कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहुमा अहब्बु इलैया मिनद दुनिया जमीअन, कि ये जो 2 सुन्नतें हैं, जो फजर की जो 2 सुन्नतें हैं ये मेरे नजदीक दुनिया और दुनिया के तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हैं। हजरत गिरामी इन सारी रवायतों को अगर हम अपने सामने रखते हैं तो हमें और आपको ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ये जो 2 सुन्नतें हैं ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इसको तर्क नहीं किया,
कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ा नहीं। जिंदगी भर आपने यही कहा कि ये दुनिया और दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा जो बेहतर है, ये जो 2 रकात सुन्नतें हैं मेरे नजदीक यही बेहतर हैं। हजरात गिरामी, इस्लाम ये जो फजर की जो नमाज है और जो 2 रकात फराइज के तौर पर हम और आप अदा करते हैं, इस्लाम की नज़र में और इसी तरीके से अमली ज़िंदगी में इसको बहुत ज़्यादा मकाम और मर्तबा हासिल है। मैं आपके सामने कुरान और हदीस के हवाले से चंद कुछ ऐसे फ़वाइद बयान करना चाहता हूँ कि आप जिन फ़वाइद को सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। जो लोग फजर की नमाज की जो लोग पाबंदी करते हैं, फजर की नमाज को जो लोग पाबंदी के साथ जमात के साथ पढ़ते हैं, ऐसे लोगों का नाम फरिश्तों के रजिस्टर में नोट किया जाता है, फरिश्तों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। और ये लोग फरिश्ते अल्लाह के पास ले जाकर के दिखाते हैं उस रजिस्टर को कि अल्लाह तेरा फला बंदा मस्जिद के अंदर मौजूद था। कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनका नाम उस रजिस्टर के अंदर दर्ज नहीं किया जाता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यताक़बूना फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार, कि रात और दिन के फरिश्ते तुम्हारे पास आते और जाते रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी मुकर्रर कर रखी है जो सिर्फ नमाज का जायजा लेते हैं। यताक़बूना फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार वयज्तमिऊना फ़ी सलातिल फ़ज्र व सलातिल अस्र, कहा वो फरिश्ते फजर और असर की नमाज में तुम्हारे पास आते हैं ये देखने के लिए कि कौन अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ता है और कौन क्या है मस्जिद से दूर है। सुम्मा यारुजुल्लज़ीना बातु फ़ीकुम, फिर वो फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के पास जाते हैं जो फरिश्ते हमारे पास रात गुजारते हैं और दिन को ड्यूटी देते हैं। जब उनका ड्यूटी पूरा हो जाता है वो रजिस्टर लेकर के अल्लाह तबारक ताला के पास पहुंचते हैं। फ़यस्अलुहुम व हुवा अअलमु बिहिम, अल्लाह तबारक ताला उन फरिश्तों से सवाल करता है। अल्लाह ताला पूछता है कि मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को तुम किस हाल में छोड़ करके आए हो? कैफ़ तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? अल्लाह तबारक ताला ज्यादा बेहतर जानता है कि मेरे बंदे किस हाल में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों की जुबानी से, फरिश्तों की जुबान से अपने बंदों की तारीफ सुनना चाहता है। इसलिए क्या है, फरिश्तों से अल्लाह तबारक ताला पूछता है कि मेरे फरिश्तों बताओ तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ कर के आए हो? कैफ़ तरक्तुम इबादी, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तरकनाहुम वहुम युसल्लून, हमने जब उनको छोड़ा तो वो नमाज पढ़ रहे थे। वातैनाहुम वहुम युसल्लून, और जब हम उनके पास पहुंचे तो वो नमाज पढ़ रहे थे। यानी जब उनके पास गए तब भी वो नमाज में थे और जब उनको हम छोड़ करके आए तब भी वो नमाज के अंदर थे। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके बारे में फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के सामने गवाही देते हैं कि अल्लाह, जिन बंदों के बारे में तू पूछ रहा है वो बंदे तेरे दरबार में आकर के, तेरे घर में आकर के अपने चेहरे को, अपने सर को सजदे में रख करके वो तुझसे फरियाद कर रहे हैं, तुझसे रो, तुझसे गिड़गिड़ा रहे हैं और अपनी बख्शिश की तुझसे भीख मांग रहे हैं। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके मुताल्लिक ये फरिश्ते गवाही देते हैं। तो पहला फायदा यह है कि जो लोग फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं ऐसे लोगों का नाम क्या है, फरिश्ते अपने रजिस्टर के अंदर दर्ज करते हैं और अल्लाह तबारक ताला के सामने पेश करते हैं। दूसरा फायदा यह है, जो लोग फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं, फजर की नमाज की अदायगी के लिए अपने नर्म गुदाज बिस्तर को छोड़ करके, नरम मुलायम बिस्तर को छोड़ करके अपनी नींद की कुर्बानी दे करके अल्लाह के घर में आते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, ऐसे लोग खैर और बरकत से महरूम नहीं होते। और वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के मुस्तहिक ठहरते हैं। हजरत सखर बिन वदाअस अल-गामिदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, कि ऐ अल्लाह तू मेरे उन उम्मतियों के लोगों के सुबह में बरकत डाल दे जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं। उठने का मतलब ये कि जो लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लेकर के आते हैं, ऐ अल्लाह ऐसे लोगों के रिस्क में तू खैर व बरकत डाल दे। हजरात गिरामी, रावी हदीस
जो हजरत सखर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये एक ताजिर इंसान थे, बिजनेसमैन थे। जब इन्होंने इस हदीस पर अमल किया, कहते हैं कि जब मैंने इस हदीस पर अमल किया, फ़अस्रा कसुरा मालुहु, तो मैं एक मालदार इंसान बन गया। सुबह सवेरे जो मेरा कारखाना था, जो बिजनेस करने का जो जगह थी, वहां जो काम करने वाले जो लोग रहते थे, मैं उन कारिंदों को, उन काम करने वालों को जब भी रवाना करना होता था, सुबह क्या उनको मैं रवाना करता था, नमाज फजर के बाद, नमाज फजर की अदायगी के बाद मैं उनको क्या भेजता था काम करने के लिए। और मैंने इस हदीस पर अमल किया, अल्लाह तबारक ताला ने मुझे मालदार इंसान बना दिया। तो जो लोग फजर की नमाज की अदायगी करते हैं, ऐसे लोग क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खैर और बरकत से महरूम नहीं होते। लेकिन हमारे माशरे का हाल ये है, मुसलमानों की अक्सरियत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से गाफिल है, इस दुआ से महरूम है। हमारे और आपकी सुबह जो होती है वो 10 बजे और 11 बजे होती है। रात 10 बजे हम सोते हैं, 1 बजे हम सोते हैं, और इसी तरीके से जब सुबह करते हैं, हमारा और आपका जो सूरज निकलता है वो दिन के 11 बजे और 12 बजे निकलता है। हजरात गिरामी, कितने अफसोस की बात है जिसके बारे में, जिसका नबी जिसके लिए ये दुआएं कर रहा हो कि अल्लाह अल्लाह मुबारिक ली उम्मती फी बुकूरिया, ऐ अल्लाह उन लोगों के रिस्क में तू बरकत दे जो लोग सुबह सवेरे उठ करके तेरी इबादत के लिए तेरे घर में पहुंचते हैं। एक और फायदा आपके सामने रखूं, जो लोग फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को हज और उम्रे के बराबर सवाब देता है। आदमी अगर चाहे तो अपनी दुनियावी जिंदगी भी संवार सकता है, दुनिया के अंदर भी खुशहाल रह सकता है, और इन हदीसों पर अमल करके, नमाज की पाबंदी करके अपना आखिरत भी वो बना सकता है और अपना आखिरत भी वो संवार सकता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलात सुबह सुम्मा काद यज़कुरुल्लाह, कि वो शख्स जो फजर की नमाज की अदायगी करता है, सुम्मा काद यज़कुरुल्लाह, फिर वो उसी जगह बैठा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अस्कार करता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो माफी मांगे, अपने गुनाहों के मुतालिक रोए और गिड़गिड़ाए, उसी जगह पर बैठा रहे, सुम्मा यज़कुरुल्लाह हत्ता ततलुआ शम्स, यहां तक कि सूरज निकल आए, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ के, यानी चाश्त की नमाज को पढ़ करके अपने घर को रवाना हो, तो फरमाया कानत लहू का अज्र ताम, कानत लहू का अज्र हज्जतिन व उम्रतिन तामतिन ताम्मा, फरमाया कि उस आदमी को अल्लाह तबारक ताला हज और उम्रे के बराबर सवाब देता है। जो फजर की नमाज की पाबंदी करता, नमाज को पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अस्कार करे, तो अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को क्या है, नेकियों से महरूम नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा, अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों के अज्र और सवाब में कमी नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला मुकम्मल तरीके से ऐसे लोगों को नेकियों से नवाजता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपने ज़माने के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनके मुतालिक बयान किया जाता है कि वो फजर की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद में बैठे रहते थे, अपनी जगह पर बैठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अस्कार करते थे। पूछने वाले ने पूछा कि शेख मोहतरम, आप अपनी जगह बैठे रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, क्या आपको नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ती? क्या आपके अंदर थकन महसूस नहीं होता? कहते हैं कि ये जो जिक्र अस्कार है यही तो मेरा नाश्ता है, ये जो जिक्र अस्कार है यही मेरा नाश्ता, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये थे हमारे असलाफ। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ये जज्बा और ये जोश और ये खरोश हमारे दिलों के अंदर पैदा कर दे, जिस तरीके से हमारे असलाफ के अंदर जो जज्बा अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया था। तो एक फायदा तो यह है कि अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को हज और उम्रा के बराबर सवाब देता है। हजरात गिरामी, एक फायदा और है कि जो लोग इशा और फजर की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, तो गोया ये कि वो लोग पूरी रात क्या है नमाज ही के अंदर रहते हैं। ये अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए, इस उम्मत के लिए इतने सारे क्या है भलाइयों के रास्तों को, नेकियों के रास्तों को हमारे लिए हमवार कर दिया है।
ज़रूरत है हमें और आपको इस पर अमल करने की। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फरमाया कि जो शख्स ईशा की नमाज को मन सल्लल ईशा फी जमाअतिन फकअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, फरमाया कि जो शख्स ईशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ता है, गोया ये कि वो आधी रात तक क़याम किया। ईशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ ले तो उसने आधी रात तक क़याम किया। उसके बाद फरमाते हैं कि वो शख्स जो फजर की नमाज को पाबंदी के साथ जमात के साथ पढ़ ले तो उसने पूरी रात क़याम की, पूरी रात उसने नमाज ही में रहा। हज़रात गिरामी, ईशा और फजर की नमाज को पाबंदी करने वाला, पाबंदी से पढ़ने वाला शख्स गोया कि पूरी रात वो नमाज पढ़ता रहा। ये अल्लाह तबारक ताला ने क्या है हमारे और आपके लिए अज्र और नेकियों को हासिल करने का रास्ता अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए हमवार कर दिया है। तो इसका एक फ़ायदा यह है कि आदमी क्या है पूरी रात नमाज ही के अंदर रहता है। आज हमारी और आपकी जो ज़िल्लत और रुसवाई है उसकी एक अहम सबब यह है कि हम और आप एक तो नमाज से वैसे ही गफलत में हैं, लेकिन अगर पढ़ते भी हैं तो फजर की नमाज से हम दूर रहते हैं। फजर की नमाज से हमारी और आपकी कोताही है। ऐसे लोगों हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सलात सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, कि वो शख्स जो फजर की नमाज की अदायगी करता है, फजर की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ता है, फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, ऐसे लोग क्या अल्लाह की निगरानी में हो जाते हैं। ऐसे लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक ताला खुद ले लेता है। दुनिया ऐसे लोगों को जलील नहीं कर सकती, ऐसे लोगों को रुसवा नहीं कर सकती, ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकती। जो लोग फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं, फजर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ते हैं, फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। और उसके बाद में फरमाया फला यतलबन्नकुमुल्लाह मिन ज़िम्मती बिशैइन, क्या लोगों अल्लाह तबारक ताला अपने जिम्मे के मुतालिक तुमसे मुतालबा ना करे, और अल्लाह ताला ने जिससे मुतालबा कर लिया ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर उठा करके डाल देगा। मुतालबा करने का मतलब यह कि जो लोग फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं तो दुनिया वालों को अल्लाह तबारक ताला बाखबर कर रहा है कि ऐ लोगों मेरे इस बंदे को तुम परेशान ना करो, मेरे इस बंदे को जलील करने की कोशिश ना करो, रुसवा करने की कोशिश ना करो, वरना हम तुम्हें जलील कर देंगे, हम तुम्हें रुसवा कर देंगे। सुम्मा यकुब्बुहु अला वजी फी नारी जहन्नम, और ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला क्या है जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। जहन्नम के अंदर दाखिल करने का मतलब ये कि ऐसे लोगों की जो जिंदगी है वो दुनिया की जो जिंदगी है जहन्नम बन जाएगी। जो लोग फजर की नमाज की अदायगी करते हैं ऐसे लोगों को अगर कोई आदमी परेशान करता है, तंग करता है, उसको रुसवा करने की कोशिश करता है, तो ये हदीस हमें बताती है कि ऐसे लोगों से इंतकाम लेने के लिए, ऐसे लोगों से बदला लेने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक टीम मुकर्रर कर दिया है। हम और आप क्यों जलील हैं? ये जिल्लत, ये रुसवाई क्यों है? एक बड़ी वजह यह है कि हम और आप क्या है फजर की नमाज से दूर हैं। नमाज तो पढ़ते हैं, बाज़ हजरात नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उन पढ़ने वाले लोगों में से बाज़ हजरात ऐसे भी हैं जो इस फजर की नमाज से दूर रहते हैं, जिसके मुतालिक रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि जो फजर की नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों की निगरानी के लिए एक टीम को लगा दिया है। हजरात गिरामी, इसी तरीके से जो लोग फजर की नमाज की अदायगी करते हैं, कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला ज़िल्लत और रुसवाई से बचाएगा। ऐसे लोगों को मुकम्मल तरीके से रोशनी अता करेगा। जब पूरी दुनिया अंधेरी होगी, हर आदमी अपने बारे में सोच रहा होगा कि किसी तरीके से मुझे क्या है नजात का कोई रास्ता मिल जाए। अल्लाह तबारक ताला उस दिन क्या है अपने बंदों को, उन बंदों को जो फजर की नमाज की अदायगी करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनको एक नूर अता करेगा। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बश्शिरिल मशाईना फी ज़ुल्म इलल मसाजिद, कि ऐ नबी उन लोगों को आप खुशखबरी दे दीजिए जो लोग अंधेरे में चल करके मस्जिद की तरफ आते हैं। कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को एक मुकम्मल नूर अता किया जाएगा। और अल्लाह तबारक ताला ने इसका जिक्र
सूरह तहरीम के अंदर फरमाया यौम ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनु मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना यग़फिर लना, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को जिल्लत और रुसवाई से बचाएगा जो लोग नबी पर ईमान लेकर के आए और नबी पर ईमान लाने के बाद उनके कही हुई बातों पर अमल किया, तो ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला एक नूर अता करेगा, नूर देगा, और वो नूर उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा और वो लोग कह रहे होंगे रब्बना अतमिम लना, ऐ परवरदिगार आलम तू हमें मुकम्मल नूर अता फरमा दे। हजरात गिरामी, तो कल क़यामत के दिन उन हजरात को अल्लाह तबारक ताला एक नूर अता फरमाएगा जो हजरात क्या है फजर की नमाज की अदायगी करते हैं, फजर की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। हजरात गिरामी, इसी तरीके से आपके सामने ये तो फजर की नमाज के फ़वाइद हुए। फ़ायदा कि हम अगर फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपके सामने बहुत सारे फ़वाइद जिक्र किए गए। उन्हीं फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला जहन्नम की आग से महफूज कर देगा। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, फरमाया कि जो लोग दो ठंडी नमाजों की पाबंदी करते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। सल्लल बरदैन से मुराद फजर और असर की नमाज है। जो असर और फजर की नमाज की पाबंदी करते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और दूसरी रिवायत के अंदर है कि ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है, जहन्नम की आग को हराम कर दिया ऐसे बंदों पर जो फजर और असर की नमाज की पाबंदी करते हैं। हजरात गिरामी, जो लोग फजर की नमाज से दूर रहते हैं ऐसे लोगों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नुकसानात बयान किए हैं। आइए एक दो नुकसानात आपके सामने रख करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग फजर की नमाज को छोड़ देते हैं, फजर की नमाज की पाबंदी नहीं करते, ऐसे लोग शैतान के कैद में आ जाते हैं। शैतान ऐसे लोगों को कैद कर लेता है। अब जरा तसव्वुर कीजिए, जिस आदमी को शैतान अपना कैदी बना ले वो आदमी कभी राह रास्त पर आ सकता है, कभी उसको राह रास्त दिखाई दे सकता है, कभी वो सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर आ सकता है, हरगिज नहीं आ सकता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी सोने के लिए जाता है तो शैतान उसके सर में 3 गिरे लगा देता है, 3 गिरे लगा देता है और उससे कहता है अलैका लैलुन तवीलुन, रात लंबी है सो जा, रात लंबी है तू सो जा। और आज हम समझ नहीं पाते हैं, हम और आप भी यही करते हैं। हमारी आंख खुली, वक्त है नमाज पढ़ने का, वक्त है मस्जिद की तरफ आने का, लेकिन हम कहते हैं कि चलिए अभी 10 मिनट बाकी है, अभी आधा घंटा बाकी है, 20 मिनट बाकी है, चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं। और उसी दौरान क्या है, शैतान सुला देता है। शैतान कहता है फरकुद, सो जा, रात लंबी है। अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी रात को बेदार हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करे, यानी वो दुआ पढ़े उठने की, सोकर उठने की जो दुआ है उसको पढ़े, फरमाया इन हल्लत उक़दतुन, वो जो एक गिरे है वो खुल जाती है। उसके बाद में फिर वजू करे, दूसरा गिरे खुल जाता है। फिर उसके बाद में मस्जिद में आए, नमाज की पाबंदी करे तो फरमाया वो तीसरा जो गिरे है वो भी खुल जाता है। और आदमी पूरा दिन क्या है, वो चाक और चौबंद रहता है, एक्टिव रहता है, उसके जिस्म के अंदर नशात, वो चुस्त और फुर्त रहता है। लेकिन जो आदमी क्या है, इस नमाज से दूर रहता है, इस नमाज से वो गाफिल रहता है, ऐसा आदमी क्या है, खबीसुन नफ्स होता है। हर वक्त क्या है, ऐसे आदमी को सुस्ती और काहिली चारों तरफ से घेर करके रखती है। तो एक नुकसान ये है कि जो लोग फजर की नमाज की अदायगी नहीं करते, फजर की नमाज से दूर रहते हैं, ऐसे लोग शैतान के कैदो बंद में चले जाते हैं। शैतान ऐसे लोगों का अपना शिकार बना लेता है और ऐसे लोगों को अपना कैदी बना लेता है। हजरत गिरामी, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी का जिक्र किया गया। ज़ुकिरा इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन, कहा गया कि अल्लाह के रसूल एक आदमी रात को सोता है और दिन को देर से उठता है, यानी फजर की नमाज को तर्क कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका रजुलुन बालुश शैतान, ये वो आदमी है जिसके कान में क्या है, शैतान पेशाब कर देता है।
ذرا تصور کیجئے، اس حدیث پر غور کیجئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس آدمی کے دل اور دماغ میں شیطان کا پیشاب جائے وہ آدمی کبھی بھی کیا ہے مسجد کی طرف نہیں آ سکتا. اور اس حدیث کے جو شرح کرنے والے جو ہیں، جو حدیث کے جو شارحین ہیں، جو اردو شرح کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو انسان کے جو کان کا جو سوراخ ہے وہ بہت پتلا ہے، بہت پتلا ہے. جب شیطان اس میں پیشاب کرتا ہے تو بہت جلدی وہ بھر جاتا ہے، اور باقی جو پیشاب ہوتا ہے اس کے چہرے پر کیا ہے باہر نکل کر کے آتا ہے. حضرات گرامی، اب جس آدمی کے کان میں، اس کے ذہن اور دماغ میں کیا ہے شیطان کا پیشاب ہو اور اس کے چہرے پر شیطان کا پیشاب پڑا ہو، وہ شیطان جو ناشتے میں صبح سویرے اپنا پیشاب دیتا ہو، اب وہ آدمی کیا ہے لاکھ جائے نائی کے دکان پر کیا ہے اپنا سیونگ کروائے اور دنیا کے کسی بھی کونے سے کیا ہے جو بھی صابن منگانا چاہے منگائے اور اس کے بعد میں کیا ہے اپنے چہرے کو دھلے. کتنا ہی دھل لے وہ چمک نہیں آ سکتی چہرے پر جو نماز پڑھنے کے بعد میں آتی ہے، کیونکہ اس آدمی کے چہرے پر شیطان کا پیشاب جمع ہوا ہے. ایسے لوگوں کے کان میں کیا ہے شیطان پیشاب کر دیتا ہے. ایک روایت اور میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اذان دے اور ایک آدمی کو آگے بڑھا دوں کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو، اور پھر میں مدینہ کے گلیوں میں چلا جاؤں اور ان گھروں میں چلا جاؤں جن گھروں میں لوگ موجود ہوں اور اذان کی آواز کو سن کر کے مسجد میں نہ آئے، فَأُحَرِّقَ، فرمایا ایسے گھروں کو میں آگ لگا دوں. فرمایا کہ اگر ان گھروں میں اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اگر یہ عورتیں نہ ہوتی تو میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا. ذرا تصور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں میں آگ نہیں لگایا، لیکن آج ان گھروں میں آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، آگ کا دھواں وہ اٹھ رہا ہے. ہمیں وہ دکھائی دے یا نہ دے، لیکن حقیقت میں وہ دھواں کیا ہے حضرات گرامی، وہ دھواں ان گھروں سے اٹھ رہے ہیں جن گھروں میں نمازیوں کی تعداد کم ہے. آپ دیکھ لیجئے، باپ بیٹے کے اندر دشمنی ہے، بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے خون کے پیاسے ہیں. یہ آگ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا. ہم اور آپ ایک مہینہ کیا ہے نماز کی پابندی کی، اور جب ہم ایک مہینہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹریننگ کے لیے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی. جب بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے، جو لوگ سگریٹ اور اسی طریقے سے بیڑی اور جو دیگر جو چیزیں اس کے کھانے کے جو عادی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیز جو تم کھا رہے ہو تمہارے صحت کے لیے کیا ہے نقصان دہ، اس کو تم چھوڑ دو، تو جواب آتا ہے کہ کیا ہے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، بہت مشکل سے کیا ہے یہ عادتیں چھوٹیں گی. ہم نے اور آپ نے 1 مہینہ نماز کی پابندی کی. میرے بھائیو، ہم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اور آپ کیا ہے نماز کے عادی ہو چکے ہیں، اب کیا ہے ہمیں مسجد کو اپنا اوڑھنا اور اپنا بچھونا سمجھنا چاہیے. حضرات گرامی، یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں کی گئیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ، اور اگر ہماری خاتمہ تو ایمان پر اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.